Hello lovely people, good wishes and a warm welcome to all. So here we are with another lecture on the series Matrices. In the previous lectures we discussed about the solution of system of linear equations using the rank concept, and there we winded out the matrices. Now with this lecture we will be studying about the eigenvalues, eigenvectors and the diagonalization of a matrix. In this lecture, we will be going to study about the eigenvalues, their properties, and how to find out the eigenvalues of different matrices. Then we will be moving towards the Cayley-Hamilton theorem, and we will discuss some of the problems related to them. And after that, we will be studying about the concept of diagonalization of a. So, without further delay, let's get started. So, our first topic here is eigenvalues. We name them characteristic values or proper values or latent values also. These are the different names of the eigenvalues. We know that if we are having a system of linear equations, ठीक है, हमारे पास एक system of linear equations होता है, तो उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So these are the matrices. Let us say हमारे पास एक system of linear equations थी, whose variables were x1 up to xn. Let us say y1 up to y1. These are some of the constant terms, and these are the coefficients of these variables x1 x2 up to xn. तो एक पर्टिकुलर अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, whether it be homogeneous or non homogeneous, तो उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Where this particular type of matrix, it is formed from the coefficients of the variables, that is known as the coefficient matrix A. प्लस यहाँ पर हमने जो सिस्टम लिया है, that is n equations in n unknowns. ठीक है, n equations in n unknowns, यानी कि number of equations and the number of variables in the system are same. इसीलिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स A, which is the coefficient matrix, यहाँ पर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है ऑर्डर n. So this is first case कि यहाँ पर matrix A, coefficient matrix, is not a general m cross n matrix. It is just a square matrix having the order n. x1, x2 up to xn. This is vector x, as we know this variables का vector है. And then this y1, y2 up to yn, they can be the constant terms, जिसकी हेल्प से हमने ये मैट्रिक्स बनाई y मैट्रिक्स. So this is the matrix y, this is the matrix x, and this is the square matrix A. Now in this case, coefficient matrix is a स्क्वायर मैट्रिक्स. तो जब भी हम लोग आइगन वैल्यूज की बात करेंगे तो ये जो भी मैट्रिक्स ए होगी वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. अब व्हेन वी राइट दिस इक्वेशन ax इज इक्वल टू y, इस इक्वेशन को वर्ड्स में हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एक वेक्टर था x और एक मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स थी x. इट इज ट्रांसफॉर्म टू अ मैट्रिक्स y which is again a column matrix with the help of a square matrix A. So this equation ax is equal to y, this matrix equation can also be written in words like this, that x gets transformed to y by the means of A. By the means of a matrix A, by using the matrix A, which is a square matrix, we have transformed this matrix x, which is a column matrix, to another matrix y, which is again a column matrix. Now यहाँ पर आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, आइगन वैल्यूज के कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि y is equal to lambda x. Let us say ये जो इक्वेशन है ax is equal to y, this is in this case if y is equal to lambda x, यानी कि this equation, if this equation becomes ax is equal to lambda x, यानी कि y की जगह पर अगर हम लोग lambda x रख देते हैं, lambda is what? Simply a scalar. Now here if we put y is equal to lambda x, then we get this type of equation ax is equal to lambda x. ठीक है, तो यहाँ पर ax is equal to lambda x, अगर this equation ax is equal to y reduces to the equation ax is equal to lambda x if we put y is equal to lambda x. यानी कि अगर हमारे पास, हम इस तरह से बोल सकते हैं, एक मैट्रिक्स x जो थी उसे हमने दूसरी मैट्रिक्स लैम्बडा x में ट्रांसफॉर्म कर दिया by means of a matrix A. Then in that case we are able to find out the eigenvalues of the matrix A. Eigenvalues, eigenvectors की जब हम बात करते हैं तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग निकालते हैं. Eigenvalues and eigenvectors are found out for a square matrix only. तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, उससे हमने एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाई जो कि एक जनरल मैट्रिक्स इक्वेशन थी. लेकिन यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट्स वाली मैट्रिक्स थी y, दिस मैट्रिक्स y को अगर हमने सिंपली यहाँ पर मैट्रिक्स y कैन बी अ कांस्टेंट मैट्रिक्स और इट कैन बी अ वेरिएबल मैट्रिक्स आल्सो.
यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये हमेशा कांस्टेंट मैट्रिक्स ही रहेगी, बट इफ दिस y मैट्रिक्स इज लैम्डा टाइम्स x, तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स x गेट्स ट्रांसफॉर्म टू द मैट्रिक्स लैम्डा x बाय मींस ऑफ अ मैट्रिक्स A। यहाँ पर लैम्डा क्या है? लैम्डा इज सिंपली अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन अगर हमारे पास है, देन इस टाइप की इक्वेशन के केस में हम लोग आइगन वैल्यूज की बात करते हैं। So when y is equal to lambda x, this equation ax is equal to y converts to ax is equal to lambda x। यहाँ पर हमने क्या किया, lambda x को हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर गए। x कैन बी रिटन एज i into x, आइडेंटिटी मैट्रिक्स into x, इसे हम राइट हैंड साइड में लेके गए, और वेक्टर x या कॉलम मैट्रिक्स x को हमने जब आउटसाइड ले लिया, सो वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। So this equation ax is equal to lambda x, it is equivalent to a equation known as a minus lambda I into x is equal to 0. So with this type of equation, we are able to find the eigenvalues and eigenvectors. Basically, यहाँ पर ये जो scalar lambda है, that is known as the eigenvalue of A only when we are having this type of equation. अगर एक matrix X lambda X में transform होती है by means of a square matrix A, then only in that case we are saying that lambda is known as the eigenvalue of A. इसे हमने eigenvalue of A नाम दिया, which is a scalar quantity. And x, this vector x or column matrix x is known as the eigenvector of A corresponding to the eigenvalue lambda. क्योंकि यहाँ पर if we are having this type of equation, so we are having two unknowns here, lambda, and lambda is known as the eigenvalue which is simply a number, simply a scalar. x जो यहाँ पर है, this is a column matrix, तो x यहाँ पर matrix है, lambda is simply a number. तो lambda की different values के लिए ये जो equation होगी वो डिफरेंट फॉर्म्स लेगी, जिस वजह से x की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जब भी हम लोग एक आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं। तो इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ a, देन दिस वेक्टर x इज नोन एज आइगन वेक्टर ऑफ a कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। इस टाइप की ये जो इक्वेशन होती है ax is equal to lambda x, which can be equivalently written as this a minus lambda I into x is equal to 0. इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, that is known as eigenvalue equation, because with this equation we can able to find out eigenvalues and eigenvectors of a particular matrix A, which is a square matrix basically. Now if I talk about this equation a minus lambda I into x is equal to 0, this is the eigenvalue equation through which we are able to find out the eigenvalues and eigenvectors for a particular matrix x, which is a square matrix. If I put x is equal to 0, अगर यहाँ पर matrix x एक zero matrix हो, then this equation will be satisfied. अगर x को मैं यहाँ पर zero matrix put कर दूँ, then this equation will be satisfied. उस केस में लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लैम्डा की जीरो, नॉन जीरो, कोई भी वैल्यू हो सकती है. If lambda is having any value and we put x is equal to 0, then this equation is satisfied. तो ये x is equal to 0 को हम कह सकते हैं, it is a trivial solution for this system. But we have to find out the values of lambda for which this equation is satisfied using a non-zero column vector x. यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि x को अगर हम 0 रखें तब तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन अगर x एक नॉन जीरो वेक्टर हो या नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स हो, इफ x इज अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, तो हमें लैम्डा की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं जिनके लिए दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड. x नॉट इक्वल टू 0 के लिए जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, तो हमें लैम्डा की यानी कि आइगन वैल्यूज की स्केलर लैम्डा की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं जिनके लिए दिस इक्वेशन गेट सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स. उस केस में दोज वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल बी नोन एज द आइगन वैल्यूज ऑफ ए. तो आइगन वैल्यूज बेसिकली वो वैल्यूज हैं जिसके लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यूजिंग अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर. अगर मैं x को 0 रखती हूँ देन ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, बट नॉन जीरो x के लिए मुझे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, उसके लिए स्केलर लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एंड दोज वैल्यूज आर नोन एज आइगन वैल्यूज ऑफ a. और आइगन वैल्यूज ऑफ a के कॉरेस्पॉन्डिंग x की जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगी, दोज आर नोन एज द आइगन वेक्टर्स ऑफ a कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा. व्हाट इज द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम? आइगन वैल्यू प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, यानी कि एक मैट्रिक्स होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसकी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है, वो जो प्रॉब्लम होगी, दैट इज नोन एज द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय राइटिंग डाउन द आइगन वैल्यू इक्वेशन व्हिच इज दिस x is equal to lambda और a minus lambda I into x is equal to 0, both are equivalent.
आइगन वैल्यू प्रॉब्लम मीन्स किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना. Now, related to these eigenvalues and eigenvectors, we are having some terms here. हमारे पास एक्चुअल में एक eigenvalue equation थी, which was known as a minus lambda I into x is equal to 0. A यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और you can say that यूनिट मैट्रिक्स है, x is a नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड लैम्डा जो है वो एक स्केलर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट. And for this eigenvalue equation, we are having some terms. Let us see those terms. First of all, this is characteristic matrix क्योंकि यहाँ पर lambda की वैल्यू and x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Lambda is the eigenvalue and x is the eigenvector corresponding to this eigenvalue lambda of the matrix. तो lambda और x को फाइंड आउट करते टाइम हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं. जो भी प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं. फर्स्ट इज characteristic matrix. Characteristic matrix क्या होते हैं? Simply this matrix A minus lambda I. This is known as the characteristic matrix. I identity matrix है, हमें पता होगी. A is the given matrix for which we have to find out the eigenvalues and eigenvectors. Matrix A भी हमें पता होगी, उसका ऑर्डर भी पता होगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं. A minus lambda I इस टाइप की मैट्रिक्स by using the values of A and I. अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं then this type of a matrix, let us say it is coming out to be a matrix B. Now this matrix B A minus lambda I, this is known as the characteristic. For example, हमारे पास एक 3 cross 3 की मैट्रिक्स है A जिसके लिए आइगन और आइगन वेक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. अगर मैट्रिक्स A 3 cross 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग ऑर्डर 3 की ले लेते हैं. तो इस केस में अगर हम लोग A minus lambda I मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं so this will be this matrix B. Now what is the characteristic polynomial? हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. इसका अगर हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं देन वी विल बी हैविंग अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और उस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाता है लैम्डा में. नाउ दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये नेम्स इसलिए हैं क्योंकि ए मैट्रिक्स के लिए हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. आइगन वैल्यूज आर नोन एज ऑल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. इस वजह से हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस टाइप की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग दीज टर्म्स इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज. तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ली, उसका डिटर्मिनेंट ले लिया. इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करें देन वी विल बी गेटिंग अ पॉलिनोमियल लैम्डा. दैट पॉलिनोमियल लैम्डा इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर द मैट्रिक्स A. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास एक मैट्रिक्स A थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे पता थी, तो A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स मैंने फॉर्म कर ली. अब इस A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं एंड इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं एक्सपैंड करूं देन आई विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. So this is the polynomial which is known as characteristic polynomial of the matrix A. Now next we have the characteristic equation for the matrix A. What is the characteristic equation? Simply इस determinant को, ये जो भी polynomial हमारे पास आया है, if we put characteristic polynomial is equal to 0 then we get a characteristic equation. इस polynomial को अगर मैं 0 को equate कर दूं then we will be getting an equation which is known as characteristic equation of A. A minus lambda I is determinant is equal to 0. Using this characteristic equation, we will be finding out the eigenvalues of matrix A. So after characteristic equation, simply characteristic polynomial को 0 put कर देंगे, then we will be getting characteristic equation. Now we have the eigenvalues of A. Eigenvalues of A का क्या मतलब है? Means हमें लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अब हमारे पास अगर एक इक्वेशन हो लैम्डा में तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की जो भी वैल्यूज आ सकती है हमारे पास, दोज आर नोन एज eigenvalues of A. So basically characteristic equation जो भी है उसके जो भी roots होंगे those are basically the eigenvalues of A. So characteristic equation is this A minus lambda I determinant is equal to 0. So this characteristic equation को अगर मैं solve करती हूँ for lambda will find out the value of lambdas. Now depending upon कि इस equation की क्या degree है we will be having different number of values of lambda and those values will be known as eigenvalues of equation eigenvalues of a matrix A. For example, अगर इसी example की बात करें तो हमने characteristic polynomial find out किया. Characteristic polynomial को जो मैंने 0 को equate कर दिया then we are getting this type of an equation which is known as characteristic equation for this matrix A. Characteristic equation की अगर मैं roots find out करूँ so this is the 3 order equation. डिग्री 3 की equation है.
डिग्री 3 की इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ फॉर लैम्डा, देन आई एम गेटिंग हियर 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 1 एंड these values of lambda which we have found out from the solution of this characteristic equation, these values are known as eigenvalues of A. तो अगर हमारे पास यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी A, तो उसके केस में हमारे पास टोटल 3 eigenvalues आई हैं एक मैट्रिक्स की. Now this will hold depending upon the characteristic equation. जो भी डिग्री होगी characteristic equation की, depending upon that we will be getting the number of eigenvalues of A. और डिफरेंट मैट्रिसेस A नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज डिफरेंट होती है. 4 ऑर्डर की ले लेते हैं अगर मैट्रिक्स A, 5 ऑर्डर की, 6 ऑर्डर की, तो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज की, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस अगर हम लोग लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज विल चेंज. बट आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर यही है. सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लेकर उस डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. दीज आर द जनरल टर्म्स फॉर दिस. ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो यहाँ पर जनरल केस में डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, एंड वी विल बी गेटिंग द आइगन वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स A. So this is basically the procedure to find out the eigenvalues of a matrix. Now, corresponding to each of these eigenvalues, we will be getting an eigenvector. तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक eigenvalue equation थी A minus lambda I into x is equal to 0. तो हम क्या करेंगे, x is known as the eigenvector. Basically, lambda की different different values इस equation में put कर देंगे. यानी कि if we put lambda is equal to 1 here, यहाँ पर lambda की वैल्यू पुट करेंगे, so this equation will reduce to A minus I into x is equal to 0. यहाँ पर A और I की वैल्यू हमें पता है, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. Similarly, lambda की वैल्यू को हम लोग 5 पुट करें, so we will be getting this type of an equation A minus 5I into x. यहाँ से भी x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी. तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज मिलती हैं, and those values of column matrix X are known as the eigenvectors corresponding to the eigenvalue lambda. जब भी हम eigenvectors की बात करते हैं, so we find out the eigenvectors of a matrix corresponding to some eigenvalue. Next we again have the determination of eigenvalues. एक particular matrix X दी गई होगी हमें, sorry matrix A, simply एक square matrix A will be given. उसके लिए हमें eigenvalues find out करनी. So first of all we will write the eigenvalue equation here. Eigenvalue equation क्या होगी, Ax is equal to lambda x, which can equivalently be written as A minus lambda n into x is equal to 0. यहाँ पर मैट्रिक्स A जो भी हमें गिवन होगी, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें, एंड मैट्रिक्स X हमें पता है x1 up to xn जो भी वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होती है, तो x और a की वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास इस टाइप की एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगी. फर्दर इस मैट्रिक्स इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है. तो बेसिकली दिस आइगन वैल्यू इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एंड दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज बेसिकली अ होमोजेनियस सिस्टम. तो यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इससे हमने यहाँ पर a और i की वैल्यू फाइंड आउट करके सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आया, इस टाइप का एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया, विच इज बेसिकली अ होमोजेनियस सिस्टम. तो और होमोजेनियस सिस्टम के केस में x1 x2 अप टू xn की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी आती है. तो दिस इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ n लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस, एंड ये जो होमोजेनियस सिस्टम है, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हियर, क्योंकि हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0 जो होगा वो तो हमेशा से ही इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा. बट वी नीड टू फाइंड आउट दिस नॉन जीरो वैल्यू ऑफ वेक्टर x. वी हैव टू फाइंड आउट अ नॉन जीरो वेक्टर x, एंड नॉन जीरो वेक्टर x मीन्स कि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर होमोजेनियस सिस्टम का. And a system of linear equations will always possess a non-trivial solution only if the determinant of coefficient matrix is 0. अगर हम एक सिस्टम की बात करें, होमोजेनियस सिस्टम के केस में, होमोजेनियस सिस्टम वाज दिस टाइप ऑफ सिस्टम. तो यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड में हमने पढ़ा था कि इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा इफ दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A हैज डिटर्मिनेंट नॉन जीरो. अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, सॉरी जीरो होगा, if
this coefficient matrix A is having the determinant 0, then only it will have non-trivial solution. Otherwise, अगर A का determinant non-zero होता है, then the system will possess a trivial solution. So, based upon this fact, यहाँ पर अगर मैं इस particular system की बात करूँ, इस particular system के लिए जो भी coefficient matrix होगी, this is the matrix A minus lambda I. इस केस में जब हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है दैट इज नॉट A, दैट इज A minus lambda I, and because this is a system of linear homogeneous equation and we need to find out a non-trivial solution out of it, उसके लिए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होने चाहिए उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, then only we can find out a non-trivial solution x from this system. तो जो भी मैट्रिक्स मेथड में हमने पढ़ा उसको अप्लाई करके हमें ये समझ आया कि दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन एंड दिस आइगन वैल्यू इक्वेशन विल पोजेस अ सॉल्यूशन ओनली इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज 0. यानी कि यहाँ पर हमें फिर से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई. इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा. So this is basically A minus lambda I determinant is equal to 0. This is a condition. This condition की help से हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन से एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x मिलेगा for which this equation is satisfied. And this is basically a polynomial. अगर मैं A minus lambda I determinant की बात करूँ so this is basically a polynomial. और इस polynomial को जीरो होने के लिए क्या होगा? We know from the theory of polynomials that every polynomial of degree n it has exactly n roots to make it vanish. यानी कि if we are having a polynomial of degree say lambda square plus lambda plus 2, यहाँ पर degree 2 का polynomial है, टाइप का एक polynomial है. इस टाइप के polynomial को जीरो होने के लिए हमारे पास lambda की दो वैल्यूज आएंगी a b लेट से. तो जितनी डिग्री होगी polynomial की उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी इस अननोन की, इस वेरिएबल की, जिसके लिए दिस polynomial will vanish. तो अगर मेरे पास n डिग्री का एक polynomial है तो this will be having exactly n roots और n values of variables so that this polynomial vanishes. तो यहाँ पर A minus lambda I का डिटर्मिनेंट अगर मैं इस पर्टिकुलर polynomial को एक्सपैंड करती हूँ so let us say we are having a polynomial of degree n. अगर इसे सॉल्व करने के बाद हमें एक polynomial मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक polynomial. Let us say that characteristic polynomial is of degree n. अगर डिग्री n का कैरेक्टरिस्टिक polynomial हमें मिलता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा की भी n ही वैल्यूज हमें मिलेंगी. और बेसिकली यहाँ से इस इक्वेशन से हमें लैम्डा की n वैल्यूज मिलेंगी if this equation is of degree n. We have this type of equation A minus lambda I determinant is equal to 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज वी विल नो द मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स I हमें पता होती है A मैट्रिक्स में गिवन होगी. इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो लैम्डा की लेट अस से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n, दिस टाइप ऑफ वैल्यूज वी आर गेटिंग हियर. तो दीज वैल्यूज आर बेसिकली द आइगन वैल्यूज ऑफ A. तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A मिल जाएगी. नाउ every square matrix has exactly as many eigenvalues as its order. अब यहाँ पर बात आती है कि if we are having a square matrix A से, तो इस square matrix के केस में हमें ये तो पता चल गया कि eigenvalues किस तरह से find out करना है by using this equation. But how many eigenvalues will a matrix possess? एक particular square matrix के पास कितनी eigenvalues possible होंगी, वो चीज हमें कैसे पता चलेगी? Now we know that eigenvalues जो होंगी वो हमें इस particular equation से मिलेगी. Now यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, if we talk about this example again, यहाँ पर इस एग्जाम्पल के केस में हमने ओरिजिनली मैट्रिक्स A ली थी. मैट्रिक्स A was 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स थी. इसके केस में हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फिर पॉलिनोमियल एंड देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जब हम पहुंचे तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें आइगन वैल्यूज मिली. तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया सो वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन एज 3 ऑर्डर 3 डिग्री इक्वेशन. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो था उसकी डिग्री थी 3, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिली. 3 डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलने के बाद हमारे पास 3 ही वैल्यूज आई लैम्डा. तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर 3 था तो
इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई या जो भी पॉलिनोमियल बनाया दैट वाज ऑफ डिग्री 3 एंड डिग्री 3 की जो भी इक्वेशन हमें मिली उसी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 3 वैल्यूज मिली लैम्डा की। तो लैम्डा की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी, टोटल कितनी नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज पॉसिबल होंगी, दिस विल डिपेंड अपॉन कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या है। The number of eigenvalues which we are getting, it will be equal to the degree of characteristic equation, and degree of characteristic equation will further depend upon the degree of characteristic polynomial, and characteristic polynomial की जो डिग्री होगी वो डिपेंड करेगी a की डिग्री पर, क्योंकि सॉरी a के ऑर्डर पर। a का ऑर्डर अगर यहाँ पर 3 है तो i का ऑर्डर भी यहाँ पर 3 है, बिकॉज सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को ही हम लोग सबट्रैक्ट के ऐड कर सकते हैं। So in this way, the characteristic polynomial, the degree of characteristic polynomial will depend upon the order of matrix A. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी इस ऑर्डर पर डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज वी आर गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का जो भी ऑर्डर होगा उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज हमें, उतनी नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज हमें उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए मिलेंगी। So number of eigenvalues of A will be equal to the order of the matrix A. We have written this down that every square matrix has exactly as many eigenvalues as its order. Particular square matrix होगी उसका जो भी order होगा that order will decide that how many eigenvalues will that matrix possess. Order of the matrix square matrix A is equal to the number of eigenvalues of A. Now we move towards some of the properties of eigenvalue. आइगन वैल्यूज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखेंगे एंड बेस्ड अपॉन दीज प्रॉपर्टीज वी विल सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की सेम आइगन वैल्यूज होंगी बट उनके आइगन वेक्टर्स डिफरेंट होंगे। तो पहली बात तो ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की जब भी हम लोग बात करेंगे दे विल बी फाउंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम लोग आइगन वैल्यूज की बात करेंगे। सेकेंडली एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज सेम होंगी बट उन दोनों के आइगन वेक्टर्स जो होंगे दे विल बी डिफरेंट। अगर हमें किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है तो डायरेक्टली हम लोग उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे एंड जो भी आइगन वैल्यूज होंगी मैट्रिक्स की उनमें रिलेशंस होते हैं। क्या रिलेशंस होते हैं? इफ वी एड अप ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स then we get the trace of a matrix, and if we multiply all the eigenvalues of the matrix then we get the determinant of the matrix। तो ये दो चीजें जो हमें पता है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड eigenvalues ऑफ द मैट्रिक्स, इनके बीच का जो रिलेशन है उसकी हेल्प से भी हम लोग मैट्रिसेस की eigenvalues फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इज कि अगर मैट्रिक्स के केस में eigenvalues का सम ले लूं then we get the trace of the matrix, and if we multiply all the eigenvalues of the matrix then we get the determinant of a matrix। For example, एक मैट्रिक्स A है कि आइगन वैल्यूज लेट अस से लैम्डा 1 अप टू लैम्डा n है। ठीक है, तो अगर इन सभी आइगन वैल्यूज को मैं ऐड कर दूं, if I want the sum of all these eigen values of this matrix A then it should be equal to the trace of A। Similarly, अगर ये सभी आइगन वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं then I will be getting the determinant of, let us say we are again having this type of a matrix, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो दिस मींस इट विल हैव 3 आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। तो अगर मैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के ट्रेस का क्या मतलब होता है कि मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का जो भी सम होगा दैट विल बी द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अगर इस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो दिस इज द फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, दिस इज द सेकंड डायगोनल एलिमेंट, दिस इज द थर्ड डायगोनल एलिमेंट। इन सभी डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड अप कर दूं then I will be getting the trace of this matrix, this will be 7। Similarly, अगर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करूं तो यहाँ पर सिंपली एक मैट्रिक्स A है, उसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो we will be getting this determinant as 2 2 1 1 3 1 1 2 1। To find out this value we will expand this determinant, 2 into 6 minus 2 and this will be minus 2 into 2 minus 1 and 1 into 2 minus 3। अगर हम इसे सॉल्व करें I will be getting 5। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस जो है दैट इज 7 एंड डिटर्मिनेंट इज 5। नाउ इसकी हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट की, सो दीज आइगन वैल्यूज वर 1 1 एंड 5।
3 ऑर्डर की मैट्रिक्स 3 आइगन वैल्यूज हमें मिली। नाउ अगर इन सभी आइगन वैल्यूज को एड अप कर देते हैं 1 + 1 + 5, this I will be getting 7 and 7 means the trace of the matrix, यानी कि आइगन वैल्यूज का सम किया देन वी आर गेटिंग द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड इन आइगन वैल्यूज को प्रोडक्ट कर देते हैं then we will be getting the determinant of matrix. These are the two properties which relate the eigenvalues of a matrix and its elements. The next property is एक मैट्रिक्स की जितने भी आइगन वैल्यूज होंगी उन सभी आइगन वैल्यूज का अगर मैं सेट बना दूं दैट सेट इज नोन एज द आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, लेट अस से ऑर्डर n की मैट्रिक्स है एंड उसकी आइगन वैल्यूज हैं λ1 λ2 अप टू λn। तो इन सभी आइगन वैल्यूज का अगर मैं सेट फॉर्म करूं दिस सेट इज नोन एज आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम ऑफ अ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट इज अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज पता हो देन उससे रिलेटेड डिफरेंट मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी नो दैट वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड उसकी आइगन वैल्यूज हैं λ1 λ2 अप टू λn। लेट अस से ए वाज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो उसकी n आइगन वैल्यूज हैं। तो अगर मुझे ए की आइगन वैल्यूज पता है देन व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ के ए। अगर मैं एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी सेम स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर मुझे ए की आइगन वैल्यूज पता है देन द आइगन वैल्यूज ऑफ के ए विल बी, जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं ए की उन सभी को उस सेम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी k λ1 k λ2 up to k λn। नेक्स्ट इफ वी हैव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज तो वही सेम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के इक्वल होंगी, बट इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। इफ वी हैव द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एज दिस then the eigenvalues of this inverse will be the inverse of all the eigenvalues of A। तो जिस तरह से यहाँ पर मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करने पर आइगन वैल्यूज भी k से मल्टीप्लाई हो गई थी, ऐसे ही मैट्रिक्स का इनवर्स लेने पर आइगन वैल्यूज भी इनवर्स थी। तो A इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी λ1 इनवर्स λ2 इनवर्स अप टू λn इनवर्स। सिमिलरली a रेज़ टू पावर m की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर a पर अप्लाई किया वही सेम आइगन वैल्यूज पर आ जाएगा। अगर a की आइगन वैल्यूज λ1 λ2 अप टू λn है, a रेज़ टू पावर m जहाँ पे m कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो a रेज़ टू पावर m की वैल्यूज क्या होंगी आइगन वैल्यूज λ1 रेज़ टू पावर n λ2 रेज़ टू पावर m अप टू λn रेज़ टू पावर m। तो इस तरह से a को हमने m टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसकी इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज भी m टाइम्स मल्टीपल हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग इज इफ वी हैव एनी फंक्शन ऑफ a, मैट्रिक्स a है, मैट्रिक्स a का कोई फंक्शन हो, लेट अस से साइन ऑफ a मुझे फाइंड आउट करना हो, कॉस ऑफ a, लॉग ऑफ a, एक्सपोनेंशियल ऑफ a, इस तरह के कुछ फंक्शंस हो a के, तो फंक्शन ऑफ a की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, फंक्शन ऑफ λ1 फंक्शन ऑफ λ2 अप टू फंक्शन ऑफ λn। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेशल मैट्रिसेस के केस में हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड उस केस में जो आइगन वैल्यूज होंगी दैट विल बी देयर डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि इफ वी आर हैविंग अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेट अस से यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स। तो दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2, तो इसकी दो आइगन वैल्यूज होंगी, फर्स्ट आइगन विल बी दिस वन एंड सेकंड आइगन वैल्यू विल आल्सो बी 1। तो जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी उसकी आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू इट्स डायगोनल एलिमेंट्स एंड द सेम प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एनी स्केलर, डायगोनल और ट्रायंगुलर। If we are having two matrices A and B such that B and A are related by this, B is equal to P inverse A। इस टाइप से अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास A and B related हैं to some matrix P जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, then we say that A matrix and B matrix both are having the same eigen values। तो अगर A and B matrices इस टाइप की रिलेशन से रिलेटेड हैं, B is equal to P inverse AP। B हमें कैसे मिलता है, P inverse AP से, where P is the नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उस केस में हम कहते हैं कि A and B both have the same eigen value। फिर से स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में बात करें तो सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिसेस की जो भी आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी दे विल ऑलवेज बी रियल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यूज होंगी दे विल बी रियल। सिमिलरली अगर स्क्यू हर्मिशियन एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो उनकी आइगन वैल्यूज विल बी 0 और प्योरली इमेजिनरी। सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिसेस के केस में आइगन वैल्यूज रियल आएंगी, जबकि स्क्यू हर्मिशियन एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में तो आइगन वैल्यूज होंगी वो या तो 0 होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी। नेक्स्ट इज
फिर से हमारे पास कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स। उनके आइगन वैल्यूज डायरेक्टली हमें पता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। इफ वी आर हैविंग एनी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यू या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। इफ वी आर हैविंग एनी निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा 0 होगी। So these are the specific cases of matrices where we already know the eigen values. If we are having a matrix A, उसकी आइगन वैल्यू है लैम्बडा एंड इस आइगन वैल्यू लैम्बडा के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर x है, देन kx is also the eigen vector corresponding to lambda. अगर एक मैट्रिक्स A है, उसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास है लैम्बडा, तो इस लैम्बडा के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक आइगन वेक्टर x मिलता है। सेम आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक और आइगन वेक्टर मिलेगा विच इज नोन एज kx एंड k इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक ही पर्टिकुलर आइगन वेक्टर मिलता है। फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग एक आइगन वैल्यू हमारे पास है लैम्बडा 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक आइगन वेक्टर मिलता है x1। लैम्बडा 2 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई दूसरा आइगन वेक्टर मिलेगा, लेट अस से दैट इज x2। एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक ही आइगन वेक्टर मिलता है। बट दिस प्रॉपर्टी सेज इफ वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स A और उसकी एक आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो उस लैम्बडा के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, वन इज x एंड सेकंड इज द मल्टीपल ऑफ x। नेक्स्ट थिंग, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज की बात करें, सो दीज आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। तो जब भी हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी और यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, तो उस केस में इनकी जो भी आइगन वैल्यूज मिलेगी, उन आइगन वैल्यूज का मॉडुलस ले लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर लैम्बडा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, then same orthogonal matrix will be having another eigenvalue which is 1 by lambda. अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में मुझे एक आइगन वैल्यू पता है, तो उस आइगन वैल्यू का जो इनवर्स होगा दैट विल आल्सो बी द आइगन वैल्यू ऑफ सेम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव अनदर टर्म व्हिच इज डोमिनेंट आइगन वैल्यू। अब नाउ वी नो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वी आर हैविंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज मिलती हैं। तो जितना ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का उतनी ही आइगन वैल्यूज मिलेंगी। नाउ आउट ऑफ दीज आइगन वैल्यूज कोई भी एक ऐसी आइगन वैल्यू जरूर होगी जो कि सबसे बड़ी होगी, जैसे लैम्बडा 3 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2 ग्रेटर देन लैम्बडा 1। इस तरह से ये ऑर्डर आता है। तो लैम्बडा 3 आइगन वैल्यू इज द मैक्सिमम आइगन वैल्यू। सो दिस टाइप ऑफ आइगन वैल्यू इज नोन एज डोमिनेंट आइगन वैल्यू, यानी कि एक ऐसी आइगन वैल्यू जिसका लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एग्जाम्पल लास्ट मैट्रिक्स ए में डिस्कस किया था, उसके केस में हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज मिली थी 1, 1 एंड 5। दिस आइगन वैल्यू व्हिच इज हैविंग द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड टाइप, दिस इज नोन एज द डोमिनेंट आइगन वैल्यू। इफ वी आर हैविंग n क्रॉस n मैट्रिक्स है, यानी कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, एंड दिस मैट्रिक्स इज सच दैट कि उसके रोज और कॉलम्स पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम के स्केलर मल्टीपल्स हैं, देन उस केस में a की जो आइगन वैल्यूज होंगी दैट विल बी ट्रेस ऑफ a एंड other eigenvalues will be 0. Now what does this property say? If we are having a matrix say A like this, एक matrix है उस पर condition है, first of all it should be a square matrix, then only its eigenvalues will be defined. For example, we are having this type of a matrix 1 2 3 2 4 6 and 3 9 and 27. तो यहाँ पर if we see that row 2 can be written as twice of row 1 and row 3 can be written as twice of row 1, यानी कि row 2 and row 3 both are scalar multiples of row 1. Similarly अगर मैं कॉलम की बात करूं, तो कॉलम 2 can be written as twice of column 1 and column 3 can be written as thrice of column 1. तो यहाँ पर क्या है, column 2 and column 3 both are scalar multiples of column 1 and similarly rows के केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस टाइप की अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस केस में द आइगन वैल्यूज विल बी, अब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, उनमें से एक आइगन वैल्यू होगी ट्रेस ऑफ ए एंड बाकी की आइगन वैल्यूज विल बी 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इस टाइप की कोई मैट्रिक्स के केस में आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स के केस में व्हाट विल बी द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज 3 6 9, इस टाइप की मैट्रिक्स है। अगर इस टाइप की मैट्रिक्स होगी देन उन केस में हम लोग ये दोनों कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस मैट्रिक्स के केस में trace of A is what 1 plus 4 plus 9, this will be 14 and other eigenvalues would be 0. तो हमने डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के केस में आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली।
इसके लिए हमें बेसिक डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं। तो इफ वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए जिसके रोज और कॉलम्स दे आर द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ a particular row or a particular column, and in that case of matrix, the eigenvalues of that matrix will be given as trace of the matrix. One eigenvalue will be the trace of matrix and other eigenvalues will be 0. तो अगर हमारे पास n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमारे पास यहाँ पर n eigenvalues होंगी। उन n eigenvalues में से एक eigenvalues तो trace of a होगा और बाकी की n-1 eigenvalues will all be 0. Now let us have some of the problems. We are having a matrix A here. तो मुझे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नाउ हियर वी आर सीइंग दैट यहाँ पर a क्यूब a स्क्वायर जैसी मैट्रिसेस इन्वॉल्व है, मैट्रिक्स I भी इन्वॉल्व है। मैट्रिक्स A तो हमें पता है, बट अगर मुझे आइगन वैल्यूज चाहिए इस होल ऑफ द एक्सप्रेशन की तो मुझे a क्यूब a स्क्वायर एंड I की आइगन वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। तो दिस मीन्स यहाँ पर जितने भी इस एक्सप्रेशन में जितनी भी मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं सभी की आइगन वैल्यूज अगर हमें पता होंगी then only we can find out the eigenvalues of whole of this expression. अब उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं by using the properties of eigenvalues. We know that eigenvalues of identity matrix are diagonal elements. Secondly, अगर मैं मैट्रिक्स A की बात करूं तो मैट्रिक्स A मेरे पास गिवन है। यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करके वहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट से मैं a की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकती हूँ बिकॉज हियर वी नो द मैट्रिक्स A. सेकेंडली a स्क्वायर एंड a क्यूब की आइगन वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अगर मुझे a की आइगन वैल्यूज पता होंगी देन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज आई कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर एंड a क्यूब। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मैट्रिक्स A जो कि गिवन मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद मैं a स्क्वायर a क्यूब एंड I की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकती हूँ। Now A is a 3x3 matrix. के केस में आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए we are having this condition here, A minus lambda I determinant is equal to 0. This is the characteristic equation, general characteristic equation. इस characteristic equation में मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स I की वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं एंड उसका डिटर्मिनेंट ले लूं, जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट ले लूं एंड इफ आई पुट दैट डिटर्मिनेंट टू 0 देन वी विल बी गेटिंग एन इक्वेशन इन लैम्डा और उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करके मैं लैम्डा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर a एंड I की वैल्यूज अगर मैं रख दूं so दिस विल बी 1 2 -3 0 3 2 0 0 -2 एंड दिस मैट्रिक्स माइनस लैम्डा I। लैम्डा I क्या होगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ so दिस विल बिकम द मैट्रिक्स a minus lambda I. So this will be what, 1 minus lambda 0 0 3 2 minus 3, this would be 0 3 minus lambda 2 0 0 minus 2 minus lambda. So this is our matrix, characteristic matrix of this matrix a minus lambda I. अब इस a minus lambda I का determinant हमें find out करना है। So the determinant of a minus lambda I would be 1 minus lambda 2 minus 3 0 0 3 minus lambda 0 and this would be minus 2 minus lambda। इसका डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है देन वी विल बी गेटिंग अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा। तो हम डायरेक्टली एक्सपैंड कर देते हैं along the first column then we will be getting this type of। अब इस a minus lambda I का डिटर्मिनेंट फॉर्म करने के बाद इसे अगर मैं 0 पे इक्वेट कर दूं then we have to find out the value of lambda from this equation। इसको 0 करने के बाद लैम्डा की जो वैल्यूज आ रही हैं डायरेक्टली हमारे पास फैक्टर्स हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 3 एंड -2। तो दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी A, ठीक है, एंड उसकी जो आइगन वैल्यूज हमें मिल रही हैं दीज आर 1 -2 एंड इस तरह से हमने बेसिक डेफिनेशन का यूज करके, बेसिक कंडीशन का यूज करके मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हमें a स्क्वायर एंड a क्यूब की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है व्हिच वी विल बी फाइंडिंग आउट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। लेट अस से वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स A which is of order 3 से और उसकी 3 आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 एंड उस केस में a रेज़ टू पावर m की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या होंगी लैम्डा 1 रेज़ टू पावर m, लैम्डा 2 रेज़ टू पावर m एंड लैम्डा 3 रेज़ टू पावर m। सभी आइगन वैल्यूज की पावर m ले लेंगे देन वी विल बी गेटिंग आइगन वैल्यूज ऑफ a रेज़ टू पावर m इफ वी नो द आइगन वैल्यूज ऑफ a। सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर एंड a क्यूब। a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी,
ए की आइगन वैल्यूज है 1 माइनस 2 एंड 3. ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर. मीन्स ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज अगर मुझे लिखनी हो तो दिस विल बी 1, 4 एंड 9. सिमिलरली ए क्यूब की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1 माइनस 2 एंड 3, देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब विल बी 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब एंड 3 क्यूब. तो दिस वुड बी ए क्यूब की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी 1 माइनस 8 एंड 27. तो इस तरह से हमें ए की आइगन वैल्यूज ए स्क्वायर की एंड ए क्यूब की आइगन वैल्यूज मिल गई. नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. वी नो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स डायगोनल एलिमेंट्स. बट यहाँ पर किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे चाहिए? अगर इफ ए इज द 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, एंड ए स्क्वायर एंड ए क्यूब ऑल विल हैविंग द ऑर्डर 3. ए का भी ऑर्डर 3 है, ए स्क्वायर का भी ऑर्डर 3 है, ए क्यूब का भी ऑर्डर 3 है. एंड हियर फॉर दिस एक्सप्रेशन टू बी पॉसिबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 होना चाहिए. तो हियर वी आर हैविंग 3 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड ऑर्डर 3 की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है दिस इज लाइक दिस. इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? इट्स डायगोनल एलिमेंट्स 1, 1 एंड 1. I3 मैट्रिक्स जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर, उसकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो है डायगोनल एलिमेंट्स which are 1, 1 and 1. So in this way we have got the eigenvalues of all the matrices involved in this. Now we will put these eigenvalues in this expression and find out the eigenvalues for this expression itself. First of all, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स के केस में हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज मिल रही हैं, दिस मीन्स इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के पास भी 3 आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी. फर्स्ट आइगन वैल्यू में क्या करेंगे? फर्स्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए दिस एक्सप्रेशन इज 3a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2i. हम डायरेक्टली यहाँ पे आइगन वैल्यूज पुट कर देते हैं. फर्स्ट आइगन वैल्यू कैसे निकलेगी? 3 इंटू, अब यहाँ पर इन सभी मैट्रिसेस की फर्स्ट आइगन वैल्यूज को हमें पुट करना है. ए की फर्स्ट आइगन वैल्यू इज 1, ए स्क्वायर की फर्स्ट आइगन वैल्यू ये है, एंड ए क्यूब एंड i3 की फर्स्ट आइगन वैल्यूज ये है. इन चारों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं. तो वी विल बी गेटिंग द फर्स्ट आइगन वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस वुड कम आउट टू बी, आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी विल बी गेटिंग दिस एज 4. सिमिलरली सेकेंड आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी मैट्रिसेस की जो सेकेंड आइगन वैल्यूज हैं उन्हें पुट कर देंगे होल ऑफ द एक्सप्रेशन में. दिस इज द सेकेंड आइगन वैल्यू ऑफ ऑल दीज मैट्रिसेस. यहाँ पर इन आइगन वैल्यूज को पुट कर देंगे. ए क्यूब की आइगन वैल्यू है -8, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू है 4, एंड -6 इंटू ए की आइगन वैल्यू है -2, एंड आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू 1 है. ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें देन वी विल बी गेटिंग हियर 10. सिमिलरली दिस एक्सप्रेशन हैज 3 आइगन वैल्यूज, 2 आइगन वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली. थर्ड आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? जो भी मैट्रिसेस इस पूरे एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है उसके केस में जो थर्ड आइगन वैल्यूज है वो थर्ड आइगन वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे. देन वी विल बी गेटिंग हियर ए क्यूब की थर्ड आइगन वैल्यू 27, 5 इंटू दिस वुड बी 9, -6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1. इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व कर लें देन वी विल बी गेटिंग 1, 1, 0. तो क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जितनी भी मैट्रिसेस इन्वॉल्व थी सबके पास 3 आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी, दैट इज व्हाई whole of this expression was having 3 eigen values which we have find out this way. तो ये सभी eigen values हो गई. Next is if A and B are invertible square matrices then AB and BA both have the same characteristic roots. यहाँ पर A and B are invertible square matrices, उनकी eigen values exist करेंगी. In that case we have to find out that AB and BA की सेम आइगन वैल्यूज आती हैं या नहीं. कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मींस आइगन वैल्यूज. तो आइगन वैल्यूज को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं. तो वी हैव टू प्रूव दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ AB एंड BA आर सेम. तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे. प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, इफ वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स X एंड सेकंड मैट्रिक्स Y such that both of them are related like this, X is equal to P inverse YP. अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं X एंड Y such that the relation between them are X is equal to P inverse YP where P is a non-singular matrix. तो उस केस में हम ये कहते हैं कि X and Y both have the same values. If इस टाइप की एक रिलेशन एग्जिस्ट करती है टू मैट्रिसेस X and Y में where P is a non-singular matrix, then we say that X and Y both have the same eigenvalues. अब यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे. अगर
हमें ये प्रूव करना है कि ए बी एंड बी बोथ आर हैविंग द सेम आइगन वैल्यूज। तो इस टाइप का रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे ए बी एंड बी के बीच में। तो लेट अस से द मैट्रिक्स ए बी इज द मैट्रिक्स सी एंड बी ए इज द मैट्रिक्स सी। लेट अस से ए बी मैट्रिक्स को मैंने सी माना, बी ए मैट्रिक्स वुड गिव मी अ मैट्रिक्स व्हिच आई हैव नेम्ड एज सी। मुझे इस टाइप की एक रिलेशन फाइंड आउट करनी है। इफ इस टाइप की एक रिलेशन सी एंड डी में एग्जिस्ट कर जाती है, then we can say that C and D, that means कि BA and AB both are having the same eigenvalue. अगर मैं इस मैट्रिक्स C की बात करूं, तो मैट्रिक्स C can be written as AB and AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, identity into AB, because any matrix multiplied by identity matrix will be the matrix back. तो यहाँ पर AB can be written as identity into AB. अब इस आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर BA की जरूरत है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज B इनवर्स B, बिकॉज यहाँ पर A एंड B आर इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ A इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन उस केस में मैं लिख सकती हूँ A into A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I। सिमिलरली B इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, उसके केस में भी मैं ये रिलेशन लिख सकती हूँ बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज B इनवर्स B and into this AB. Now just we have to solve this. B inverse बाहर लेते हैं, will be BA into B. BA is what? The matrix T. B inverse BB. And B यहाँ पर क्या है? Invertible matrix है. Invertible matrix है, that means कि B का determinant is non-zero, यानी कि B non-singular है. Because यहाँ पर B हमें invertible matrix दी गई है, this means which matrix is invertible only if it is non-singular. So if B is invertible, then that means B is non-singular matrix. तो इस तरह से हमारे पास C is equal to B inverse BB. This is the relation between the matrices C and B. तो यहाँ पर हमारे पास C and D matrices जो है उनके बीच में एक ऐसी relation आ गई जहाँ पर B जो है वो एक non-singular matrix. तो यहाँ पर भी इस टाइप की ही इक्वेशन है ये, C and D are related by this equation where this matrix B is a non-singular matrix. So from this equation we can say that C and D, that means कि AB and BA both are having the same eigenvalues by using this property discussed above. Now let us move to another question. Next is we have to show that 0 is the eigenvalue of a matrix if it is a singular matrix. If means if and only if. तो यहाँ पर दो कंडीशन है, दो केसेस हैं. केस 1 is हमें गिवन है कि 0 is the eigenvalue of a matrix. Let us say the matrix B, the matrix A. Let we have a matrix A और उसकी eigenvalue हम लोग लेके चलते हैं. Let us say A has an eigenvalue 0. तो उस केस में हमें ये प्रूव करना है कि A मैट्रिक्स सिंगुलर है. That means कि determinant of A is 0. ये चीज हमें प्रूव करनी है. This is the case first. If 0 is the eigenvalue of A, this means कि lambda is equal to 0. And we know that the characteristic equation is what? In general, for a matrix A, the characteristic equation can be written like this. यहाँ पर अगर लैम्बडा की वैल्यू 0 है, लैम्बडा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, then we will be getting determinant of A is equal to 0. This means A is singular. Simply, if 0 is the eigenvalue of a matrix, then the matrix is singular. Case 2 की अगर हम बात करते हैं, case 2 में we are given that matrix A is non-singular. That means the determinant of A is 0. And we have to prove that 0 is a eigenvalue of A. Case 2 क्योंकि यहाँ पर if and only if condition है, तो necessary and sufficient both condition we have to prove. First case में हम लोग ये लेके चले थे कि 0 eigenvalue है A की. In the second case, we are given here that matrix A has the determinant 0. That means it is a singular matrix. And we have to prove that 0 is the eigenvalue of. उसके लिए फिर से वही condition A minus lambda I determinant is equal to 0. This is the characteristic equation. General characteristic equation for the matrix A can be written like this. Now we have to find out the value of A, sorry lambda. अब इस particular determinant को अगर मैं solve करूँ, so by properties of determinant this can be written as minus lambda I determinant is equal to 0. तो determinant of A is given to be 0. तो यहाँ से lambda I का जो determinant होगा that is equal to 0. अब identity matrix, let us say identity matrix has order n. So this lambda I determinant would be lambda into determinant of I is equal to 0. And identity matrix का जो determinant होता है, it is always 1. The determinant of identity matrix is always 1. Plus यहाँ पर this will be lambda raised to power n. क्योंकि यहाँ पर lambda I का whole determinant अगर हम लोग find out करते हैं,
So this will be lambda n into determinant of I if I is the identity matrix of order n. आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 1 हो, और दिस प्रोडक्ट टू बी 0, लैम्डा n शुड बी इक्वल टू 0. अगर लैम्डा रेज टू पावर n 0 है, दिस मीन्स कि लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर then 0 is an eigenvalue of that. So this was all about today's lecture. In this lecture we studied about how to find out the eigenvalues of a particular matrix, and then we studied some of the basic points related to these eigenvalues, and then किस तरह से हम एक आइगन वैल्यू को डिटरमिन करते हैं. एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन जो होती है दैट इज बेसिकली सिस्टम ऑफ n लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस जिसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है इफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट 0. और उसके बाद हमने ये देखा कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा दैट विल बी सेम एज द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज व्हिच दैट मैट्रिक्स हैज. उसके बाद हमने आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. डिफरेंट जो स्पेशल मैट्रिसेस थी उनके केस में हमने आइगन वैल्यूज डायरेक्टली फाइंड आउट की. कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस किए जिससे हम डायरेक्टली एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं instead of going through the whole process of finding out the eigenvalues. And based upon that, we have discussed some of the problems here. In the next lecture, we will be discussing about Cayley-Hamilton theorem and how to find out the eigenvectors of the matrix. इस लेक्चर में हमने सिर्फ आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर देखा. In the next few lectures, we will be discussing about how to find out the eigenvalues of a matrix, and then we will move towards the diagonalization of. Till then, keep learning, keep practicing, and stay tuned.